Hello students, here is lesson number 16. Name of the lesson is quadrilaterals. The meaning of quadrilateral, quadri means 4. Okay, means as we have learned the meaning of triangle, triangle means 3 and angle, 3 angles. A geometrical figure which is having 3 angles is called as triangle. The same way, here quadrilateral means, quadri means 4, lateral means sides. A geometrical figure which is having 4 sides is called a quadrilateral. Okay, so here in this lesson we are going to learn about some of the quadrilaterals. Let us learn the meaning of quadrilateral. Take 4 points A, B, C, D on a paper. Here on paper A, B, C, D 4 points are taken such that any 3 of them will be non-collinear. Here what is the condition? 3 points, any 3 points, they should be non-collinear. Non-collinear means they should not be in straight line. Then these points are to be joined to make a closed figure. ये सारे पॉइंट्स क्या करने हैं? ज्वाइन करने हैं. ओके, ए बी सी डी और डी से लेकर फिर से ए तक. In such a way that when any 2 points are joined, the other 2 must lie on the same side of that line. ओके, यानी यहां से ए से लेकर सी तक आना नहीं. ओके, क्योंकि अगर इफ वी जॉइन ए सी, 1 point will lie to the left side, 1 will lie to the right side. It should not happen. When you join the any 2 points, that time the remaining 2 points should be to one side. कौन से तो भी एक साइड है, आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड, कौन से तो भी एक साइड में होनी चाहिए. दैट इज द कंडीशन. द फिगर ऑब्टेन बाय फॉलोइंग द गिवन रूल इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलैटरल. तो ऐसा करने से जो फिगर बनेगी उसको बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल. ओके, लेट इट ज्वाइन. नाउ सब आई ज्वाइन ए बी, राइट. नाउ सी एंड डी आर टू द वन साइड. नाउ आई ज्वाइन बी एंड सी. ओके, दीज 2 points आर टू द अनदर साइड. नाउ आई ज्वाइन सी एंड डी. तो देखो ए बी एक साइड में. नाउ आई ज्वाइन ए एंड डी. ओके, बी एंड सी एक साइड में. और ये ज्वाइन करने के बाद जो फिगर मिलती है दैट इज कॉल्ड द क्वाड्रिलैटरल. उसको बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल. क्वाड्रिलैटरल मींस ज्योमेट्रिकल फिगर, क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर. ओके, ट्राइंगल में हमने पढ़ा था क्लोज फिगर. सो द क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग 4 साइड्स इज कॉल्ड अ quadrilateral. Then observe the figures. Here downside some figures are given. Observe the figures below and say which of them are quadrilaterals. Okay. Now here this is having 4 sides. Means so this is a quadrilateral. Okay. Here 1, 2, 3, 4. Here four sides are there. 1, 2, 3, 4 sides are there. Okay. But what is the problem? Here whatever the rule is explained, okay, that while joining the any 2 points, the remaining 2 points should be to another side. Suppose if I name these points as A, B, C, D. Okay. Now while joining A, B, okay, C और D एक साइड में होते हैं, करेक्ट. While joining A and D, C और B एक साइड में होते हैं, करेक्ट. But while joining B and C, एक पॉइंट राइट साइड में जाता है, एक पॉइंट लेफ्ट साइड में जाता है. सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रिलैटरल. ओके, ये अपने रूल में फिक्स होता नहीं है. ओके, देन दिस फिगर इज हैविंग हाउ मेनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 साइड. सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ क्वाड्रिलैटरल. ओके, हियर दिस फिगर, this is having only 3 sides. This is also not a quadrilateral. Correct? So up till now you must have understood exactly what is meant by quadrilateral और होना कैसे चाहिए. Okay. Here downside explanation is given. Here figure 1 is that of a quadrilateral. Only figure number 1 is of a quadrilateral. Remaining 3 are not quadrilaterals, even though they are having 4 sides, but then also they are not quadrilaterals. Correct. Let us move ahead. Like a triangle, जैसे ट्राइंगल में हमने पढ़ा है, जैसा ट्राइंगल में होता है, क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज अ क्लोज फिगर. क्लोज फिगर यानी कहीं पर ओपन नहीं हो चाहिए. ओके, द 4 लाइन सेगमेंट्स
that form a quadrilateral are called its sides. Okay, जो 4 लाइन सेगमेंट्स होती है दोज हु आर जॉइन ईच अदर, ओके, जो क्वाड्रिलैटरल की बाहर के ये बनाते हैं. सपोज नाउ हियर ए बी, segment AB, segment BC, segment CD, segment AD. Okay, these 4 line segments are called as sides of the quadrilaterals. Segment AB, BC, CD and AD are the 4 sides of this quadrilateral. Then points A, B, C and D. ये जो points होते हैं A, B, C and D are the vertices of the quadrilateral. जैसे ट्राइंगल में वर्टाइसेस होते हैं 3 वर्टाइसेस, वैसे क्वाड्रिलैटरल में 4 वर्टाइसेस होते हैं. करेक्ट. देन नाउ हाउ टू रीड द क्वाड्रिलैटरल. क्वाड्रिलैटरल का रीडिंग कैसे करना है? रीडिंग एंड राइटिंग अ क्वाड्रिलैटरल. अ क्वाड्रिलैटरल कैन बी नेम्ड बाय स्टार्टिंग एट एनी वर्टेक्स एंड गोइंग सीरियली आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अराउंड द फिगर. ओके, क्वाड्रिलैटरल का अगर नाम लिख रहा है हमें तो कहां से भी शुरुआत कर सकते हैं. ए से शुरुआत करो, डी से करो, सी से करो, बी से करो, लेकिन जो कुछ भी करना है, ओके, जहां से शुरू करोगे, सपोज सी से शुरुआत की है, देन क्वाड्रिलैटरल सी बी ए डी, तो सीरियली जाना है, या आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, या तो ऐसा जाओ नहीं तो ऐसा जाओ, लेकिन सीरियल टूटनी नहीं चाहिए. नहीं तो सी डी बी ए ऐसा नहीं बोल सकते. ओके, जो क्लॉकवाइज नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज जो मोशन है वो तोड़नी नहीं. ओके, दैट वे वी कैन रीड इट. देन व्हेन राइटिंग द नेम ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, अ साइन लाइक दिस. व्हाट इज दिस साइन? दिस साइन इज ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल. ओके, इसका मीनिंग क्या है? क्वाड्रिलैटरल इज पुट इन प्लेस ऑफ द वर्ड क्वाड्रिलैटरल. अब ये क्वाड्रिलैटरल वर्ड हमेशा ऑल द टाइम राइटिंग दिस मच लॉन्गर बिगर वर्ड, लॉन्गर वर्ड. ओके, तो इससे अच्छा है कि शॉर्टकट यूज करो. बस इतना साइन दे दिया, उसका मीनिंग क्या है? क्वाड्रिलैटरल. ओके, और एक साइन है, थोड़ा सा पिछले लेसन का एक्सप्लेन करता हूं. दिस साइन इट इज यूज फॉर ट्राइंगल. ओके, ट्राइंगल ए बी सी. ओके, और ये जो साइन है दिस क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी. ओके, दिस इज ट्राइंगल साइन, दिस इज क्वाड्रिलैटरल साइन. करेक्ट. Now let us see how this quadrilateral is read. ये quadrilateral ABCD कैसे रीड कर सकते हैं? Now we can read it by how many ways? By 4 different ways. Not even 4, even 8 different ways. Okay, how it is? Here only 4 are given. I will explain you by other remaining 4 also. Now here reading quadrilateral ADCB. देखो quadrilateral ADCB clockwise method. नहीं तो क्वाड्रिलैटरल DCBA, क्वाड्रिलैटरल DCBA. ओके, पहला कहां से शुरुआत की थी? ए से. दूसरी शुरुआत डी से की. देन नंबर 3 कहां से शुरुआत की है? सी से. क्वाड्रिलैटरल CBAD. ओके, यहां पर भी ध्यान रखो, यहां पर भी ध्यान रखो. तीसरा क्या है? क्वाड्रिलैटरल CBAD. ओके, एंड हाउ इट इज रिटन? दिस वे. Quadrilateral CBAD sign. Instead of writing this word, what sign is used? Then fourth one is quadrilateral BADC. Quadrilateral BADC. B से शुरुआत की है. ओके, अब ये इन्होंने क्या किया? क्लॉकवाइज लिया है. हम लोग एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं. Here only clockwise method is used. Okay, here you see, here it is mentioned either clockwise or anti-clockwise. तो हम लोग यहां पर ऐसा भी कर सकते हैं. अब देखो ए से शुरुआत की है, देन क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी, ऐसा भी लिख सकते हैं. देन क्वाड्रिलैटरल बी सी डी ए एंटी क्लॉकवाइज, देन क्वाड्रिलैटरल सी डी ए बी और क्वाड्रिलैटरल डी ए बी सी. दिस वे आल्सो. दीज आर द 4 different ways. These are the 4 and plus as I explained those 4 plus means 4 plus 4. By 8 ways we can write the name of the quadrilateral. और 8 में से कौन सा भी एक लिखा देना so it is correct. Okay. Moving ahead. Write the names of these quadrilaterals starting at any vertex and going anti-clockwise around the figure. जो मैंने जो 4 एक्सप्लेन किए वो इसका आंसर है. By going anti-clockwise. Okay. तो मैं यहां पर लिखता हूं anti-clockwise.
Okay. Anti-clockwise quadrilateral A, B, C, D. Then number 2, B से शुरू करो, B, C, D, A. तीसरा C से शुरू करो, क्वाड्रिलैटरल C, D, A, B. और चौथा D से शुरू करो, D, A, B, C. D, A, B, C. Okay, these are the 4 ways given. Now these are the 4 ways we have written by which method? Anti-clockwise. Okay, let us move ahead to next page. On next page, let us learn point is there. Okay, in that what point is there? Adjacent sides of a quadrilateral. Okay, एडजेसेंट का मतलब, पहले ये एडजेसेंट का मीनिंग समझ लो. एडजेसेंट यानी शेजारचा, पास वाला. ओके, हमारे नजदीक. ओके, यानी जिसके साथ हमारा कुछ तो भी कनेक्शन है. ओके, नेबरिंग. ओके, नेबरिंग साइड. नाउ दिस इज अ क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी. ओके, इन दिस द साइड ए बी एंड साइड ए डी. कौन सी साइड? ए बी मतलब दिस एंड साइड AD मीन्स दिस. ये दोनों साइड. ओके, ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD हैव अ कॉमन वर्टेक्स. इन दोनों का वर्टेक्स कॉमन है. कौन सा वर्टेक्स कॉमन है? वर्टेक्स A इज कॉमन टू बोथ द साइड्स. देन साइड्स AB एंड AD आर एडजेसेंट साइड, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड. अब ये दोनों साइड में कनेक्शन क्या है कि दोनों का वर्टेक्स कॉमन. ओके, ऐसी AB की और एक एडजेसेंट साइड कौन सी है? BC. ये देखो, ये दोनों भी एडजेसेंट साइड से, ये दोनों एडजेसेंट साइड है. AD और CD भी एडजेसेंट साइड से, CD और BC दोनों एडजेसेंट साइड से, क्योंकि इन दोनों में वर्टेक्स C कॉमन आता है. ओके, दैट इज व्हाट वी हैव टू राइट. नेम द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स इन द फिगर अलोंग साइड. इस फिगर में जो है पेयर्स एडजेसेंट, उनका लिखना है नीचे. Okay, therefore side, now I will not write here this way, it should be written side AB side AD ऐसा, लेकिन यहां पर जगह नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिखता हूं. ओके, AB is adjacent to AD. Okay, AB is adjacent to AD. Then AB is also adjacent to BC. AB is adjacent to BC. ओके, इन दोनों का लिखा. अब इन दोनों का लिखा. ओके, अब इन दोनों का लिखते हैं. साइड BC is adjacent to साइड CD. Okay, and this side CD is adjacent to AD. Side CD is adjacent to side AD. Correct? So every quadrilateral has 4 pairs of adjacent side. हर एक quadrilateral को कितनी pairs होती है adjacent sides की? 4 pairs. Okay, remember this. This is the main point. Okay, let us move ahead. The next point is opposite sides of a quadrilateral. Opposite sides of a quadrilateral. In quadrilateral ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल है. ओके, इसमें AB एंड DC देखते हैं. AB एंड DC हैव नो कॉमन वर्टेक्स. उनमें कोई वर्टेक्स कॉमन है क्या? नहीं है. देन साइड AB एंड DC आर अपोजिट साइड्स, तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं? अपोजिट साइड. उनमें वर्टेक्स कॉमन नहीं होना चाहिए. अगर वर्टेक्स कॉमन आ गया तो उनको क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड्स. देखो, एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल हैव अ कॉमन वर्टेक्स. ओके, कॉमन वर्टेक्स आ गया उनको बोलते हैं एडजेसेंट साइड. वर्टेक्स कॉमन में नहीं है उनको बोलते हैं अपोजिट साइड्स. अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल डू नॉट हैव अ कॉमन वर्टेक्स. ओके, so side AB and DC are opposite sides of quadrilateral.
Then name the pairs of opposite sides of this quadrilateral, this ABCD. Then कौन सा है? AB and DC. AB and DC are opposite sides. ये दोनों opposite sides से और ये दोनों opposite sides से. Then this side is AD and BC. AD and BC are the opposite sides. Okay, opposite sides of the quadrilateral do not have a common vertex. Okay. Now let us move to next point, that is adjacent angles of a quadrilateral. Alright. Take 4 straws or sticks or strips, all of different lengths. Join them to each other to make a quadrilateral. ऐसे quadrilateral बनाना है. किसकी मदद से? या तो straw ले लो, नहीं तो stick ले लो, नहीं तो strip ले लो. Okay. Then draw its figure. We get the quadrilateral DEFG. हमें quadrilateral मिलता है DEFG. उसके vertex को नाम दिए DEFG. Okay. The two angles. हाँ, अब हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे हैं? एडजेसेंट एंगल्स. ओके, एडजेसेंट का मीनिंग तो समझ में आया होगा शेजर सा. ओके, तो द टू एंगल्स DEF, देखो एंगल कौन सा? DEF मीनिंग दिस, एंड एंगल GFE मतलब दिस. ओके, दे हैव अ कॉमन आर्म EF. इन दोनों एंगल की स्पेशलिटी क्या है? उनमें ये आर्म यानी साइड. ओके, EF कॉमन है. ओके, अगर दोनों साइड में अगर वर्टेक्स कॉमन होता है तो उनको बोलते हैं एडजेसेंट साइड. तो वैसे ही दोनों एंगल में अगर एक साइड कॉमन आती है, ओके, तो उनको वो दोनों एंगल को क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल्स. अब देखो, ये दोनों एंगल में एक साइड कॉमन है, इन दोनों में एक साइड कॉमन है. ओके, इन दोनों में एक साइड कॉमन है, इन दोनों में एक साइड कॉमन है. ओके, सो दीज एंगल्स आर नेबरिंग और एडजेसेंट एंगल्स. ओके, एडजेसेंट एंगल को क्या बोलते हैं? नेबरिंग एंगल भी बोलते हैं. सो नेम द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल DEFG. ये जो क्वाड्रिलैटरल DEFG है, ओके, उसके एडजेसेंट एंगल्स का नाम लिखना है. ओके, तो पहला एंगल लिखते हैं, एंगल DEF. एंगल DEF उसका नेबरिंग एंगल, नहीं तो एडजेसेंट एंगल कौन सा है? EFG, दिस. ओके, ये दोनों एंगल EFG. ओके, अब ऐसे ही शुरुआत करते हैं. अब इसका एडजेसेंट एंगल ये हो गया, तो इसका एक एडजेसेंट एंगल ये भी है. ओके, सो एंगल EFG, दिस EFG का मतलब दिस एंगल इज एडजेसेंट टू FGD. Correct. Then this angle is also adjacent to this, means angle FGD is adjacent to angle GDE. Okay, even this angle GDE is adjacent to angle DEF. Angle GDE is adjacent to angle DEF. Correct. Okay, I hope this adjacent angles concept is clear to everyone. Below that, what is given? The point to remember, the angles of a quadrilateral which have एंगल, क्वाड्रिलैटरल के एंगल जिनमें क्या होता है? वन कॉमन आर्म. दो एंगल के बीच में अगर एक कॉमन आर्म होता है, then that is are called adjacent angles of the quadrilateral. तो ऐसे एंगल्स को क्या बोलते हैं? adjacent angles of the quadrilateral. Okay, let us move to next page and next point. Let us start with the next point, opposite angles of a quadrilateral.
in quadrilateral DEFG. Okay, now this quadrilateral, it was taken, it is on next page. Okay, but for our information, I will draw it here. Okay, so that the point also we will understand the point with the figure. Quadrilateral DEFG. DEFG. Let us see. Let us see the point. In quadrilateral DEFG, in this quadrilateral, the angles, which angle? Angle DEF, which angle? DEF means this angle, okay, and angle DGF, and angle DGF means this angle, okay, do not have any common arm. इन दोनों एंगल में कॉमन आर्म नहीं है, ओके। इस एंगल के आर्म कौन से हैं? साइड ईडी एंड साइड ईएफ। इस एंगल के आर्म कौन से हैं? साइड जीडी एंड साइड जीएफ। कॉमन आर्म नहीं आता है इनमें, ओके। देन सच एंगल्स, एंगल डीईएफ एंड एंगल डीजीएफ लाई अपोजिट टू ईच अदर। ये दोनों एंगल कैसे हैं? दे आर अपोजिट टू ईच अदर। व्हाई? बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी आर्म इन कॉमन, हेंस दे आर द अपोजिट एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ओके। तो ऐसे जो दो एंगल होते हैं, दे आर द अपोजिट एंगल्स, ओके। अब यहां पर देखो, दिस एंगल, ये दोनों दे आर अपोजिट। इन दोनों में भी कॉमन आर्म नहीं है कुछ, ओके। सो बिकॉज ऑफ दैट दिस सेपरेट साइंस आर डन फॉर दिस, ओके। यहां पर इसको मैं और थोड़ा सा अलग साइन देता हूं, ओके। ये दोनों अपोजिट एंगल्स, ये दोनों अपोजिट एंगल्स, right? Then name the other opposite angles in the figure. Here already we have done. Then angle opposite to angle EFG, EFG, इस एंगल का अपोजिट कौन सा है? EDG, एंगल एंगल EDG, right? Then angle opposite to एंगल FGD, यानी इस एंगल का अपोजिट कौन सा है? एंगल DEF, एंगल DEF, राइट? दिस इज ऑल अबाउट द opposite angles of a quadrilateral. Its information point is given. The angles of a quadrilateral which do not have a common arm, okay? दो एंगल, ऐसे दो एंगल जिनमें कॉमन आर्म नहीं होता है, आर कॉल्ड अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो ऐसे एंगल्स को क्या बोलते हैं? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ओके। दिस पॉइंट इज क्लियर? देन नाउ लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ओके। In quadrilateral ABCD, in this quadrilateral, the line segments, कौन सी लाइन सेगमेंट? दैट जॉइन द वर्टाइसेस ऑफ द अपोजिट एंगल्स। लाइन सेगमेंट जो अपोजिट वर्टाइसेस को जोड़ती है, अपोजिट वर्टाइसेस को जोड़ती है, ऑफ एंगल ए एंड सी। देखो, एंगल ए एंड सी एंड ऑल्सो एंगल बी एंड डी, ओके। अपोजिट वर्टाइसेस को जोड़ने वाली जो लाइन सेगमेंट होते हैं, हैव बीन ड्रॉन। द सेगमेंट्स ए सी एंड बी डी, द सेगमेंट ए सी एंड सेगमेंट बी डी, ओके। ध्यान रखो पेन कहां पर जा रहा है। सेगमेंट ए सी एंड सेगमेंट बी डी विच इज ज्वाइनिंग द अपोजिट वर्टाइसेस आर द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। उनको क्या बोलते हैं? डायगोनल्स। द डायगोनल ए सी जॉइंस द वर्टाइसेस ऑफ द अपोजिट एंगल्स ए एंड सी। ये जो डायगोनल ए सी है, ये क्या करता है? जो अपोजिट वर्टाइसेस है उनको जोड़ता है। तो अपोजिट वर्टाइसेस को जोड़ने वाली जो सेगमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? डायगोनल, ओके।
So here in this figure, how many diagonals are seen? How many diagonals are drawn? Two diagonals are drawn. Diagonal AC and diagonal BD. So two diagonals. So every quadrilateral has got two diagonals. So information about it. The line segments which join the vertices of the opposite angles of a quadrilateral are the diagonals of the quadrilateral. Okay, diagonals of a quadrilateral किसको बोलते हैं diagonals? जो लाइन सेगमेंट जो अपोजिट वर्टाइसेस को जोड़ती है. ओके, किसके अपोजिट वर्टाइसेस? क्वाड्रिलैटरल के. ओके, जो लाइन सेगमेंट क्वाड्रिलैटरल के अपोजिट वर्टाइसेस को जोड़ती है. ओके, ऐसे लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं? डायगोनल ऑफ दैट क्वाड्रिलैटरल. ओके, in the figure above, name the angles whose vertices are joined by the diagonal BD. डायगोनल BD है वो कौन से एंगल के वर्टाइसेस को जोड़ती है? नेम द एंगल्स हुज वर्टाइसेस आर जॉइंड बाय द डायगोनल BD. सो उनके नाम क्या है? ये जो BD है कौन सा? एंगल ABC, एंगल ABC एंड एंगल ABC and angle ADC. Okay, these two angles vertices are joined by the diagonal BD. Okay, after that try this activity is there, but by seeing the length of the video I will stop the video here. Okay, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा. In the next video, next point, polygon and also the practice set number 37 and 38. दो practice set है उसमें. Both the practice set, whatever the examples are there in both the practice sets, all examples will be solved and explained. Okay, till then, see you. Thank you.